देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ सम मोर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें 2 डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, अंश। यस सर। बेटा तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ठीक है। आज हम लोग एक तीसरा डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। ये बोलता क्या है, इफ A and B are divisible by A and B are divisible by C, then वाला जिसमें दही खाना खाते। नमन बेटा कहाँ हो? यस सर। कहाँ हो? सर यही पे थोड़ा सा। Then A plus B is लिख रहा है also सर बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा रहा है सर। divisible by C। क्या हुआ? देखो क्या बोल रहा है, A and B are divisible by C, ठीक है। मतलब क्या, जो A है ये भी क्या है, डिविजिबल बाय C है। इसका मतलब रिमाइंडर विल बी 0। B है, B है। ओए B क्या है, ये भी डिविजिबल बाय C है, दैट मींस द रिमाइंडर विल बी 0। इज इट ओके? We know that when something is exactly divisible, that means the remainder will be 0. Is it यस okay? सर। And in the rules, it is given that if A and B are divisible by C, that means when A is divided by C, the remainder will be 0. When B is divided by C, then the remainder will be 0. Is it okay? Yes, sir. Okay. यस सर। वीडियो ऑन करो, तुम ऑडियो म्यूट कर लो, वीडियो ऑन करो, ठीक है। कॉपी दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, प्लीज शो योर नोटबुक। सर ये कुछ नहीं आ रहा सर। बाहर जाके फिर से ज्वाइन करो, उत्पल यस सर। फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि A and B are divisible by C, इसका मतलब यही होगा। तो क्या बोल रहा है, A plus B is also divisible by C, ठीक है। मतलब क्या, जो A plus B होगा, अगर मैं इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, अगर हम लोग इसको C से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आया समझ में? आया समझ? यस सर। यस सर। कोई ए नंबर बोलो, रेंडमली कोई नंबर बोलो। इधर नहीं है, उधर सब हल्ला करता है। 18 सर। 18। बी बोलो। 19। अरे ऐसा कुछ बोलो जिसका कॉमन, कुछ ना कुछ कम से कम एक कॉमन फैक्टर हो। सर 19। 19 और 18 में कॉमन फैक्टर कहाँ है, 1 को छोड़ के। अनम्यूट करो। 12. 12, चलो। अब देखो ए और बी क्या है, 12 है। Yes. अब बताओ, मान लो सी बराबर 3, ठीक है। Yes, sir. जब a डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, a डिवाइडेड बाय c, दैट मींस क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाय 3 Yes, sir. will be the quotient Sir, 6. 6, and what will be the remainder, 0. 0।
सिमिलरली बी डिवाइडेड बाय सी करेंगे। बी क्या है मेरे पास? 12, डिवाइडेड बाय सी क्या है? व्हाट इज सी? 3, 3. What will be the quotient? 4, 4. And what will be the remainder? 0, 0. And we know that when the remainder will be 0, that means the number is exactly divisible. Is it okay? yes sir, Means 18 and 12 is exactly divisible by 3. Okay. Now yes sir, we will check that A plus B is divisible by C or not. Okay. Now tell me, what is A plus B? A plus B is nothing but it is equal to 18 plus 12. 12, What will the sum of 18 plus 12? 30, 30. Now tell me, A plus B is equal to 30. Now tell Yes, me, sir. 30 is divisible by C. yes sir, Yes, sir. 30 will be divisible by 3 when the quotient will be equal to 10 and remainder will equal to 0. That means no, the sum of the number is divisible by 3. Is it okay? yes sir, And Yes, sir. the number whose sum we will find, that number is also separately divisible by 3. Is it okay or not? Yes, sir. yes, देखो Yes, sir. प्लस बी का जो सम है वो क्या है? 3 से डिविजिबल है। yes sir, तो ए भी 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है। yes sir, अब देख लो अंश, Yes, sir. A is equal to 18, B is equal to 19. Okay? yes, Yes. अब टेल मी, Yes, sir. मान लो A is divisible by 3. मान लो कि C मेरा 3 है। Is it okay? yes sir, Yes, sir. A is divisible by C. 18 divided by 3. It will give quotient is equal to 6 and remainder is equal to 0. Okay? yes sir, Now tell me, is B divisible by 3? That yes means sir, 19 is divisible by 3? no, No. What will be the quotient? 6 and remainder will be 1. Means 19 is not exactly divisible by 3. yes sir, Okay. Now tell me, A plus B. What is A plus B? 18 plus 19. Yes, tell me. 37, 37 या 47? 37. No. yes sir, Okay. Yes, Tell me, sir. is 37 divisible by 3? no sir, No. Naman, is it okay? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. उत्पल समझ में आया? उत्पल यस सर। समझ में आया? सर बैक मीटिंग निकाल रहा था, उसको नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा? अब हम क्या करें? तो उसका नेट अच्छा नहीं है। देखो, तुम ऑफिस में आ जाओ और मेरे चेयर पे जाके बैठ जाओ। वहां पे नेट अच्छा आएगा। ठीक है? यहां तक समझ में आया किसी को कि नहीं? आ गया, आ गया? तो याद रखना, अगर कोई नंबर सेपरेटली किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल है, वो नंबर क्या होगा? उसका सम जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इज इट ओके? yes sir, अंश Yes, sir. समझ में आया? तो छोड़ो। समझ में आया? Yes, sir. आपने लिया था एग्जांपल 19 का, तो 19 और 18 क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है।
दोनों नंबर 3 से Yes, sir. डिविजिबल नहीं है। इसका सम जो था क्या वो 3 से डिविजिबल हुआ? No, sir. नहीं। अगर किसी भी नंबर का सम किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? ये भी नंबर इससे डिविजिबल है और Yes. ये भी इससे नंबर से डिविजिबल है। इज इट ओके? Yes, sir. नाउ शैल आई इरेज इट? हैव यू राइट इट? Yes, sir. आप लोगों ने लिखा है इसको? नो सर, नो सर। लिखो जल्दी, फास्ट, बी फास्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर, यस। सर ये रेड भी जरूरी है लिखना? हाँ, रेड वाला भी जरूरी है लिखना? कोई एक एग्जांपल लिख लो, इतना मत लिखो, कोई एक सर एग्जांपल। लिखे है सर। हो गया? इरेज सर कर दूं? यस सर, यस सर, हो गया सर, यस सर, सतीश इरेज कर दूं? यस सर। अब देखो, अब एक लास्ट रूल है, ये क्या बोलता है? मानो अगर ए इज divisible by C, okay? B is divisible by C, then A minus B is divisible by C. समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्या अगर A जो है क्या है, C से डिविजिबल है, B है अगर वो C से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा? A माइनस B क्या होगा? C से C डिविजिबल। से डिव इज इट क्लियर? अब मानो Yes, sir. नंबर बताओ। 27, 27। B बताओ। 21. अब B मान लेते हैं 3 है, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब मानो A is divisible by 3, A is divisible by C, means 27 is divisible by 3. Yes. Yes, sir. Percent will be 9 and remainder will equal to 0. 0. Now B is divisible by C. 21 is divisible by 3. C. Quotient will be 7 and remainder will be 0. 0, Okay. Tell me what is A minus B? Sir, 6. 6. Tell me, is this 6 is divisible by 3? Yes, sir. Yes. Quotient will be equal to 2 and remainder will equal to 0. ठीक है? मीन्स क्या, अगर मानो यहां पे देखो, अगर मानो A क्या है, C से डिविजिबल है और B क्या है, C से डिविजिबल है, ठीक है? तो A माइनस B भी क्या होगा? C से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इससे पहले क्या पढ़े थे? अगर A C से डिविजिबल है और B C से डिविजिबल है, तो A प्लस B भी क्या था? C से डिविजिबल था। इज इट क्लियर? Yes, sir. डाउट? कोई डाउट है? No, sir. सर। बोलो इसको। उत्पल समझ में आ रहा है? यस सर। सर हो गया। ठीक है? तो इरेज कर दूं? Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है, एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर का जो उसका फैक्टर है, जो प्राइम नंबर है उसको फाइंड करते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. दो मेथड है, एक मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन यूजिंग ए फैक्टर ट्री। ठीक है, यूजिंग ए फैक्टर ट्री। अब चलो इस फर्स्ट मेथड को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई 70 है। इज इट ओके? हाँ, यस सर। अब बताओ 70 कोई ऐसा प्राइम नंबर बोलो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 70 आ जाए, जिसमें एक प्राइम नंबर हो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, सर 35 7 10. 10 हाँ, Yes, sir. अब देखो एक मिनट रुको, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो 7 × 10। अब बताओ 10 यस सर और 7 में कौन सा नंबर प्राइम नंबर है? 7 Sir, 7 को ब्रैकेट में घेर के छोड़ दो। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी, yes, sir. इज 10 ए प्राइम नंबर? No, sir. नो सर हम लोग 10 को क्या करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। क्या होगा? 5 into 2 5 into 2 5 × 2 होगा। नाउ टेल मी, यस 2 ए प्राइम नंबर? Yes. Yes, sir. यस सर, इसको ब्रैकेट में घेर दो। है नाउ टेल मी, इज 5 ए प्राइम नंबर? Sir. सर। हाँ, Yes, sir. यस। तो इस 7 के फैक्टर में क्या क्या प्राइम नंबर है? 752. 752 752। तो 7 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 70 का? 7 5 multiply. 7 into 5 into 2 अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 × 2 क्या आ जाएगा? 70 समझ में आया? Yes, sir. ये इसी तरह क्या होता है, हम लोग देखो एक ट्री का फॉर्मेशन किए, यस सर। एक ट्री का फॉर्मेशन किए कि नहीं किए? तो इसलिए हम लोग Yeah. यस सर। प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग ए फैक्टर ट्री। इज इट ओके? Yes. अब देखो चलो 70 फिर से करता हूं। आपने क्या बोला था, 35 × 2? 35 × 2, टेल मी 2 इज ए प्राइम फैक्टर? Yes, sir. यस, 2 इज ए प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से घेर देते टेल मी 35 इज ए प्राइम नंबर? Yes, sir. नो सर। Yes. नो सर। सतीश कहाँ हो, सोया हुआ हो क्या? No, sir. नहीं. अगर अगर 35 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका फैक्टर भी तो होगा। यस सर। टेल मी द फैक्टर ऑफ 35। 7 7. into 5 7 into 5 7 इज ए प्राइम नंबर? यस सर। यस सर तो इसको भी 5 इज दे ए प्राइम देंगे नंबर? और 5 को भी यस सर यस सर। फिर देखो अभी भी इसका प्राइम नंबर कितना आया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया, 2 7 7, 5 2. 752 वहां पर भी क्या था 752। कैसे भी कर लो सेम ही आएगा प्राइम नंबर। इज इट ओके? यस चलो किसी कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब बताओ 18 का प्राइम नंबर बताओ। 18 को करो प्राइम फैक्टराइजेशन से।
18 की 80 2 3 हाँ? 18 हाँ, 18 18 सर सर 3 into 6 नहीं, शुरू से करो। क्या होगा पहले? सर 3 2 into 6 इज 3 ए प्राइम नंबर? yes sir कौन बोला नो? किसने बोला नहीं? किसी ने अब बताओ 6 क्या प्राइम नंबर है? नो सर तो क्या करेंगे no इसको? sir 6 और3 multiply into 2 3 into 2। सर हो गया 3 into 2 2 into 3 3 और 2 क्या हुआ? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इज इट ओके? yes sir ऐसे कर लोगे? यस सर यस सर चलो इसको एरेज कर दूं। yes sir यस सर अब है रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो 70 को देखो, रिपीटेड डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। जो नंबर होता है उसको इस तरह लिख दो, ठीक है? इज इट ओके? यस सर उसके बाद जो सबसे कम नंबर है उससे इसको डिवाइड करो। इज इट 2 2? 2 What will the remainder? Sorry, what will the quotient? 35 35। तो 35 को क्या करो, 70 के जस्ट नीचे में लिखो। जो क्वोशेंट आता है ना उसको जस्ट नीचे में लिखो। नाउ टेल सर मी, LCM है सर नाउ टेल मी 35 is this divisible by 3? नो सर This divisible by 4? नो सर 5? यस सर यस सर 5 What will be the 7 quotient? 7 ये क्या हो गया इसका फैक्टर फैक्टर। समझ में आ गई? कौन सा फैक्टर? प्राइम यस फैक्टर। ठीक है, repeated division method ठीक है। अब देखो 64, इसको करते हैं, क्या करेंगे? 2 से डिवाइड 32 32 फिर 2 से डिवाइड होगा, yes यस sir सर क्वोशेंट क्या होगा? 16 फिर 2 से डिवाइड होगा, yes यस sir सर क्वोशेंट क्या होगा? 8 2 से डिवाइड होगा, यस यस सर सर 4 फिर 2 से डिवाइड होगा। यस सर 2 अब करने की जरूरत है? यस सर तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 2। देखो अब 2 कितने टाइम्स है? 1 6 times 3 4 5 6। जितने टाइम होते हैं उतने प्राइम नंबर के ऊपर डाल देते हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर है। यस सर प्राइम नंबर के ऊपर 6 डाल दो। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। यस इज ओके? यस सर ये समझ में आया? जैसे 18 को बताओ 2 से डिविजिबल है? यस सर yes sir यस सर यस सर यस सर क्वोशेंट क्या आएगा? 9 अब बताओ ये 3 से डिविजिबल है? yes यस sir सर यस। इसको कैसे लिखेंगे? 2 into 3। 3 कितने टाइम्स है? 2 2 times टाइम्स क्या करेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे किसके ऊपर? 3 3 के ऊपर 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। इज इट क्लियर? अंश, yes sir नमन तुम खाना खाने चला गया क्या? no sir हेलो
नमन गया खाना खाने। हेलो नमन सर, हम यहीं पे है। यहीं पे हो ना? ठीक है, तुम वीडियो ऑन करो, तुम भाग भी जाते हो बीच में। अब इसी तरह बताओ 60 क्या होंगे? 2 से 2 से परसेंट क्या होगा? 30, 40, फिर क्या होंगे? 2 2 से से परसेंट क्या होगा? 15, फिर क्या होंगे? 3 से 3 से परसेंट क्या होगा? 5, 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 5। हाँ, तो क्या इंटू करें? 2 इंटू 5। 2 कितने टाइम्स है? 2 2 टाइम, टाइम। कहाँ पे लिखेंगे? पावर में, ठीक है? इंटू यस सर। 3 × 5। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो नो सर, सर। दोनों मेथड पढ़ लिए? सर हाँ सर हाँ बेटा। 5 है तो 5 को फिर हम 5 से नहीं काट सकते हैं चलो फैक्टर। चलो तुम्हारा ही बात मानते हैं। चलो 5 को 5 से काट देते हैं। यहाँ पे क्या रिमाइंडर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? 1 1 1। अब इसको क्या? नहीं हुआ, 2 × 2 × 3 × 5 लिखोगे? यस हाँ यस सर, बिल्कुल। यस सर, यस बात तो बराबर ही है ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। समझ में आया? यस सर। अंग्रेजी में पढ़ रहा है। चलो, क्या बोला भैया अंश? नहीं कुछ सर, आज क्या तुम थोड़ा गुस्सा में लग रहे हो? नो सर, केस कटा लिया। अच्छा, केस कटा लिया इसलिए गुस्सा में। अब देखो ये एचसीएफ और एलसीएम समझ में आता है? यस सर, एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम यस सर। बताने की जरूरत है? नो सर, नो सर, एलसीएम मतलब लोएस्ट, देखो एचसीएफ एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, फैक्टर, और एचसीएफ हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस सर। सर फुल फॉर्म लिख ले। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, इज इट क्लियर? अब देखो जैसे यस फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको 60 और 72 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 60 छोटा को 60 छोटा का को बड़ा, 60 का फैक्टर लिखेंगे। 60 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 यहाँ देख 2 30 2 15 5 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। 2 × 2 × 5 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ पावर क्या होगा? 2 2 2 सर 2 × 5 × 3। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिए, ठीक है? अब इसी तरह यस सर। 72 को बोलो, क्या लिख सकते हैं? 72। हाँ देखो यहाँ कर रहे हैं, होगा? सही है? सर 3 3 होगा, 3 3 सर, सर 2 पर 3 3 कहाँ पे? 3 ये 3 सर है, 9 9 9 5 9। 3 है, ठीक है? सर 2 3 पे 2, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ पावर 3 3 सर 3 होगा ना, इस तरह, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, हाँ सर यहाँ पे 3 होगा, नो सर। सर 2 पर 3 ना होगा, यस सर। 2 पे 3 होगा, ठीक है? अब देखो यस सर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 का पावर क्या है, 2, यहाँ पे 3 का पावर क्या है, 1, 1, 1, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या Yes. होगा, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, 3, 3 इंटू करो, ठीक है। 5 कॉमन है दोनों में, no sir, छोड़ दो। नो सर, यहाँ पे क्या है, 2 रेज़ पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, ये 2 raised power कॉमन क्या होगा, 2, 2, रेज़ पावर 2, 2। 1, यहाँ देख, यहाँ देखो 2 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 3 में, दोनों में जिसका सबसे लोएस्ट पावर होगा, इस दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, sir, 2, 2 raised power 2, 2 रेज़ 2 पावर रेज़ पावर 2 का, लोएस्ट पावर। ये जो लोएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, कॉमन हो जाता है। जैसे Yes. देख लो, इसको क्या लिखो, 2 इंटू 2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, दोनों में Yes, common sir. है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यस yes sir, तो क्या होगा, इसलिए दोनों में कॉमन क्या निकला, 2 रेज़ पावर 2 निकला। यस Yes, sir. सर, जो 2 नंबर में सबसे लोएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, कॉमन भी होता है, ठीक है। yes sir, यस सर, तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 sir, होगा, सॉरी Yes, yes sir, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 होगा। 12, देखो 12 यस सर, into 60, 5 remainder, quotient will be 5, और 12 72 में 12 से डिवाइड करो 6, इज इट ओके। yes sir, अब देखो यस सर, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इज इट ओके, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। एक बार और सर, एक बार और। देखो यस सर, सपोज, चलो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, sir, 2 into 2 into 2, लिख सकते हैं। चलो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 2, into 2, 2 into 2, ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ पावर, 3, 3, ये क्या 3, होगा, 2 रेज़ पावर 2, ठीक है। अब इस दोनों में सबसे लोएस्ट पावर किसका है, sir, 2 raised power का, 2 रेज़ पावर 3 है ना, इसको कहते हैं बेस, जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, रेज़ पावर, पावर, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो yes sir, अगर इस दोनों में कॉमन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जिसका सबसे कम पावर होगा वो क्या हो जाएगा, common, कॉमन। तो सबसे कम पावर किसका है, 2 raised power 2 का, तो 8 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, sir, 2 रेज़ पावर 2 का मतलब क्या है, 4, 4, the HCF of 8 and 4, is it okay, यस सर, यस सर, किसी कोई दिक्कत, नो no सर, sir, ये टिक कौन मारा बे, अंश किया होगा, यस सर, बेटा मार खाओगे, ठीक है। अब एलसीएम पढ़ूं कि पढ़ लोगे, सब पढ़ा दीजिए, अच्छा, अब चलो एलसीएम पता करना, ठीक है। चलो 3 नंबर है, ठीक है, 105, 216 एंड 314, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, छोटा छोटा ले लो। 75, 35 और 50, इस तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब क्या था, लोएस्ट common, मल्टीपल, मल्टीपल, यस,
ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 75, 35 और 50। चलो 2 से कटेगा, नो सर। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ एक कटता है तो नहीं काटोगे। 3 से कटेगा सर। एक ही नंबर कटेगा, 2 नंबर कटेगा। नो सर। नो सर, नो। 5 से यस सर, तीनों। क्या होगा, 1 3 5 5 क्या हो जाएगा 7 7 यहाँ पे। 10 अब किससे कटेगा, 5 से क्या होगा, 3 7 7 2 2। अब ये किसी से कटेगा। नो नो सर। सर। इसका एलसीएम क्या होगा, 5 into 5 5 into 5 into 3। 3 7 into 2 हाँ 5 into 7 2 5 into 5 3 into 7 into 2। अब देखो ये 2 5 होंगे। यस सर। यस सर। यस दो सर। ठीक है, का पावर फाइंड करते हैं। ठीक है, 5 raised इज इट ओके।